Okay. So now the story starts that I was really worried about Tricky this time. I is the doctor, the veterinary doctor, and while he was going by car on the road, he had a look of the Tricky was also there, going by his mistress with his mistress, and when he saw the poor condition, the disease condition of that very dog, he became very much worried, happy. He became sad. Who became sad? The doctor, the vet doctor became sad. And where was Tricky? Both of them were on the road. Tricky was going with his mistress, and the doctor was also going by car to somewhere. I had pulled up my car, means I stopped my car on the road when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. What was his appearance? He became very much fat. Entire body was, let's say, I mean, having a good amount of fats and muscles, which is not good. Name of the dog is what? Tricky. Hmm. He stopped the car and have a good look at the dog, and he became very much sad, looking at the let's say physical condition of the dog, because he has become very much fat and unable even to walk properly. He had become hugely fat. जब बहुत ज्यादा हम लोग फैटी खाना खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, तो हम लोग फैट हो जाते हैं। फैट होना अच्छी बात नहीं होती। फैट होने में ना हर तरह की बीमारी आता है। सबसे पहले डायबिटीज हो जाती है, दूसरा हम लोग लेजी हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, वी कैन नॉट वर्क फ्रीली एंड स्मूथली एंड कंटिन्यूअसली। और फिर उसमें बीपी वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर। वो लग रहा था ना कबाब, जैसे हम लोग पकाते हैं ना, कबाब में निकला हुआ रहता है, उस तरह से वो हो गया, कबाब हो गया, सॉसेज की तरह हो गया, विथ लेग एट ईच कॉर्नर। हिज आई, आंख ना हम लोग का ब्लू होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक वाला रेटिना ब्लैक रहेगा, और उसके इर्द गिर्द चारों जो व्हाइट पोर्शन है व्हाइट, बट हिज आइज is full of, let's say, blood sort, which telling that his kidney and liver is not functioning well, and rheumatics हो गया, उसको joints pain हो जाता है और सूज जाता है, straight ahead, and his tongue lolled from his jaw all the time. His tongue was out, doing like that, means he was not respiring normally, abnormal, and not, let's say, he was lost into his thought all the time, let's say, only looking in front of him, whereas the dog should be very sweet and agile, and it should be, let's say, I mean, vibrant and enthusiastic, but these all signs are not available or found into that very dog. Only simply, slowly and slowly walking on the road with his mistress. And while he was going on the road with his mistress, in that very, let's say, I'm in fat condition, the doctor, it was a chance that the vet doctor was also going, and he saw the dog and he stopped the car. And he has told you about the physical condition of the dog. I hope that the beginning of the story is clear to you. Rohit, आराध्या, आयुष, समझ में आया बेटा कुछ? Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. एक कुत्ते की Yes, कहानी है, sir. हम हिंदी, हाँ हिंदी में हम फिर दो चार लाइन बोल देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। एक कुत्ते की कहानी है। कुत्ता बहुत रिच फैमिली से है, उसको अलग तरह का 50 सेट कपड़ा मिला हुआ है, उसका 5-7 तरह का कोट है, उसका सारा बर्तन अलग अलग है। हम लोग तो गरीब घर से है, हम लोग एक ही बर्तन में सुबह भी खाते हैं, शाम भी खाते हैं, दोपहर भी खाते हैं। इसका अलग अलग तरह का बर्तन था, अलग अलग का बेड बना हुआ था, अलग अलग कोट था, शर्ट था, पैंट था, और इसको जरूरत से ज्यादा खाना खिलाया जाता था। एंड द रिजल्ट वाज that he developed fats into his body, and developing fats in the body is not good, rather it is, let's say, I mean, disease state, and a number of disease will come, and you will lose your, let's say, I mean, freedom of, let's say, I mean, moving and here and there. You will be not sweet, you will be not agile, rather you will be dull, and all the time you will be lying there. And while in this condition, जब इसका ये condition था, एक दिन वो रोड पे जा रहा था, मैं कभी कभी ले जाके, डॉक्टर पहले भी इसको देखे हुए थे, ये डॉक्टर जो आई है, नरेटर है, ये पहले भी बोले थे कि इसको सारा ना स्वीट्स, डेजर्ट जितना होता है खाना बंद कीजिए, फैटी खाना, इसको प्रॉपर एक्सरसाइज दीजिए, और इसको वो कीजिए, वॉक पे ले जाइए। लेकिन ये सुनी नहीं थी। बहुत लाड प्यार था, बहुत इंटीमेसी थी, बहुत इनको लगाव था, अटैचमेंट। द मिस्ट्रेस हैज अ लॉट ऑफ अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट, जैसे हम लोग अपने बच्चे से रखते हैं अटैचमेंट, वैसे था। इसलिए इसका खाना पीना नहीं बंद की, बल्कि और दे देती थी। अभी नाश्ता किया है 8 बजे, फिर 1 घंटा बाद इसको हॉर्लिक्स और दूध और मिठाई, फिर कभी टॉफी, कॉफी जो होता है तुम्हारा, कैडबरी मिल्क वगैरह, वो दे देती थी।
खैर आगे चलो। इनकी कुत्ते का नाम है ट्रिक्की और मालकिन का नाम अबाया है, मिसेस पम्फरी। Hasten to explain. When the doctor stopped, she started talking and explaining to the doctor. Name of the mistress is Mrs. Pumphrey. इसको underline करोगे और याद रखोगे. He was so listless and telling the doctor that all the time he is lost into his thought. ये तो खोया खोया रहता है। कुत्ते को चाहिए एकदम ना, वो बोला जाता है विद्यार्थियों में ये लक्षण होना चाहिए, स्वानिद्रा। एक चुटकी ही बताओ तो कुत्ता उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी नींद टूट जाना चाहिए, लेकिन ये सब एक्टिविटी नहीं था वो, उसमें एजिलिटी थी ही नहीं। ही वॉज लिस्टलेस, एकदम खोया रहा था मिस्टर हैरियट। So now three characters. One is the dog, whose name is Tricky. Second is his mistress, Mrs. Swamfrey, and the name of doctor is Mr. Harriet. Underline all the these names. You will remember it. That I know you are all smart children. He seemed to have no energy. उसमें जरूरत से ज्यादा एनर्जी था, एनर्जी तो था नहीं, फैट्स था, लेकिन वो ऐसे हिलता डुलता बोलता चलता था ना कि लगता था इसमें कोई एनर्जी नहीं। ये सारी बातें मिसेस पैम्परी जो है कुत्ते की मालकिन, शी इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू द डॉक्टर। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। एंड वो लगता है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, हालांकि मिस्ट्रेस थी, पैसे वाली थी, उतनी उम्रदार थी, 40-45 की होगी, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा, बल्कि उनको और गलत समझ में आ रहा है कि लगता है कुत्ता को ना ये माल न्यूट्रिशन है, खाना की कमी है, जबकि उनको सोचना चाहिए कि इनको इतना ज्यादा खाना दिया जा रहा है। उनको लगता था खाना की कमी है, इसलिए कुत्ता ना खोया खोया रहता है और इसमें एनर्जी की कमी है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स to build him up. And that's why she told the doctor, Mrs. Pumphrey told the doctor, that I think that the dog is suffering from malnutrition. He has lack of energy. So I am giving in between the meal. जैसे 8 बजे नाश्ता किए, 12 बजे खाना खाना, तो ये 2-3 घंटा के बीच में ना एक गिलास हॉर्लिक्स दे दिए, दूध दे दिए, कुछ स्वीट्स दे दिए। ये बोली मालकिन ने डॉक्टर को। सब माल्ट, मॉल्ट एक बहुत तगड़ा विटामिन आता है, टॉनिक के रूप में आता है, एंड कॉड लिवर ऑयल जो होता है, मछली का जो तेल आता है, एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। व्हेन there will be a lot of what you say, fat into the body. Na, nobody can sleep properly. When he was not sleeping, ma'am was thinking, his mistress was thinking that he is not sleeping because he is energyless. So she told that I am giving him some malt. ये सब याद रखोगे। उसको खाना जनरल खाना के अलावे क्या दिया जाता था, अंडरलाइन करो। मॉल्ट था, कॉड लीवर ऑयल था, और कभी कभी उसको ग्लास तो कुछ होगा नहीं, कॉड लिवर हॉर्लिक्स दिया जाता था एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। एंड शी टेलिंग दैट दो आई एम प्रोवाइडिंग हिम extra food like horlicks and this and that and biscuits and cod liver oil, still he is not sleeping well in normal sleep. Normal sleep होता है ना जब हम लोग नॉर्मल रहते हैं, जब बॉडी में कोई डिजीज नहीं रहता। Later on, now move. And did you cut down on the sweet things as I told you? Then the doctor, that I have previously asked you some days ago when we met, that please don't give him a lot of, let's say, I mean sweets. Sweets जब बॉडी फैट हो जाता है ना, देखते हो मोटे आदमी मिठाई से भागते हैं, मिठाई खाने से और जल्दी जल्दी फैट्स बढ़ता है और बीमारी का घर होता है, शुगर हो जाता है बॉडी में, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, और बहुत परेशानी होती है। तो डॉक्टर पूछ रहे हैं कि आपने इसको स्वीट्स देना बंद किया, कट डाउन किया ऑन द स्वीट थिंग एज आई हैव टोल्ड यू? ओ आई डिड फॉर अ वीक। वो बोली कि हमने किया, कुछ दिन किया, 1-2 दिन किया, फिर हमको लगा कि कुत्ता ना नॉर्मल नहीं है, तो देना शुरू कर दिया। बट ही seemed to be so big, I had to relay. And she told that I have cut short, stopped giving the sweet things, but when I found that he was energyless, again I resumed, means again I started giving that very food to him. He does love cream, cakes and chocolates so, और वो बोली कि हम खिलाते हैं ना, बड़ी चाव से खाता है, जैसे चॉकलेट है, नहीं अच्छी चीज होती है, केक है, ये सारा फैट्स चीज है, नॉर्मल लोगों के लिए है, और वो भी कभी कभी के लिए है, रेगुलरली तो खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है? बच्चों को भी नहीं, तुम लोग को भी नहीं खाना चाहिए रेगुलरली। और बोले कि उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो आइसक्रीम हम देते हैं, whenever I provide him he eats and eat, it's poison for him। ऐसे लोग के लिए या जानवरों के लिए जब बॉडी ऐसा हो जाता है ना, तो ऐसा देना और वो खराबी होता है, और वो उसके लिए जहर के समान हो गया। So she told the doctor that in the beginning, as you told, I had to stop, but because I found him energyless and he was not having a normal sleep, so I just again started giving him, let's say, cakes and chocolates and cream। Clear to all of you? Clear है? Yes, Yes, sir. sir.
बिल्कुल Yes, सही sir. है। हिंदी इंग्लिश सब हम बोल रहे हैं कि बच्चों को कम से कम स्टोरी समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। एक मिनट। हम्म। इतना बोलते हैं, बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलो। आई लुक्ड अगेन, लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। आई जब भी आएगा ना, यू हैव टू राइट आई इज द नरेटर, एंड हु इज द नरेटर? द वेट डॉक्टर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द वेट डॉक्टर? हैरियट। सो इफ इट इज आस्क्ड हु इज आई, यू विल राइट हैरियट, मिस्टर हैरियट, the vet doctor. VET, vet, veterinary doctor. That was the trouble. And the doctor told that this is the trouble. That's why the dog is diseased. And in that very condition, that you are providing him endless amount of, let's say, rich food like chocolates, creams, and sweet things. Ticky's only fault was greed. टिकी ना बहुत लालची था, उसको जितना खाना मिलता था ना उतना ही खाते जा रहा था। वो लालची लालची खाना में अच्छा नहीं होता। लालची बनो, पढ़ाई में बनो, 2 घंटा पढ़े, फिर 10 मिनट ब्रेक लिए और फिर बैठ के पढ़ लगे, तो वो फायदेमंद होता है। लेकिन खाना में बहुत ज्यादा खाना खाना, जब बॉडी बहुत ज्यादा फैट हो जाता है ना, आदमी कोई काम के लायक नहीं रहता, बॉडी तो भड़कीला मोटा तगड़ा हो जाता है, जैसे हमारे रोहित का बॉडी है। लेकिन अगर ये इसको कंट्रोल नहीं करेगा और अगर जरूरत ज्यादा खाते जाएगा तो आगे चल के यही शरीर ना बीमारी हो जाता है, वो डल हो जाता है, वो काम करने के लायक उसको दिन भर लगेगा कि हम लेटे रहे। कोई भी हो, ने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, it's good to be have a hefty body, but it's not good to, let's say, have, let's say, I mean, lot of fats in the body. He had never been known to refuse food. क्या बोलता है कुत्ता को? जब भी अभी खाया है ना, 10 मिनट बाद कुछ भी खाना दो ना, वो रिफ्यूज नहीं करेगा। नॉर्मल कुत्ते रिफ्यूज कर जाते हैं, और इसको इतना लाड प्यार मिला है, इतना शुरू से खाना मिला है, जब खाना और दो, वो तुरंत रिफ्यूज नहीं करता, तुरंत खाने को बैठ जाता है और खा जाता है। He would tackle a meat at any hour of the day or night, whether it is day or night. If the mistress was providing a food any time, he is ready to consume, and he used to consume. He never, let's say, was refusing. He was eating. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और भी बहुत सारे बातें हैं जो कि मैम ने छुपा ली थी, कुत्ते की जो मालकिन थी ना, वो छुपा ली थी, सारा बात बताई ही नहीं थी। जैसे, आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? जब बॉडी मोटा है तो नॉर्मल आदमी को भी करना चाहिए। आज के युग में ये समय नहीं मिलता, सुबह सुबह ड्यूटी है, स्कूल है, लेकिन बोल रहे कि डॉक्टर साहब बोले, हमने बोला था इस कुत्ते को खूब एक्सरसाइज दीजिएगा, करवाइएगा। आपने करवाया इसको? आर यू गिविंग इन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? Well, he has little walks with me, as you can see. But Hoggy, the director, has been down with Lamango, as there has been no ring throwing lately. And she told that sometimes that you can see that I am taking him out of the, let's say, I'm in home for a walk, and my gardener, he told that it is not possible for him to play with the ring or different sorts of exercise inside the home. So he has not been given any sort of exercise. Only sometime he is coming on board. तो उससे उसको कुछ नहीं होगा। सुबह सुबह तुमको पता नहीं है, तुम्हारे शहर में बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जिनके पास समय है, वो सुबह सुबह निकल के वॉक करते हैं, और वॉक भी धीमे धीमे नहीं किया जाता, स्पीड से किया जाता है, ताकि शरीर से पसीना निकले, और जो अनवांटेड अननेसेसरी जो फैट्स जमा हो गया है, वो फैट्स निकले। दूसरा, खाने पे कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ तो कुत्ता को कुछ नहीं हो रहा, ना एक्सरसाइज मिल रहा है, और ना तुम्हारा उसको खाना में कमी किया जा रहा है, और खाना दिया जा रहा है, और कुत्ता इतना लालची है that all the time he is ready to eat and eating, either it is day or night. Now move on. Then I tried to sound severe. तो डॉक्टर बोले ना कि जब तक अब हम सीरियस नहीं होंगे ना, ये कुत्ता, जो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, चाहे जानवर के हो, चाहे तुम्हारे वो क्या बोलते हैं आदमी के हो, उनका पेशेंट जब बीमार रहता है ना, उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो वो सीरियस हो जाते हैं, जब तुम उनकी बात को नहीं मानोगे ना, थोड़ा रफ हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। कैसे हम लोग क्लास में कभी कभी अंदर से गुस्सा नहीं है, लेकिन ऊपर से हम लोग शो करते हैं दैट वी आर वेरी मच एंग्री एंड आई वांट टू इम्प्रूव यू, तो ये थोड़ा सीरियस हुआ है। नाउ आई रियली मीन दिस, एंड ही इज टॉकिंग टू मिस्ट्रेस Pumphrey, that whatever I have told, you have to do it. I am serious. If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. ये नहीं बोले कि कुत्ता आगे चल के मर जाएगा, बल्कि सिर्फ इनडायरेक्टली बोले that his problem will aggravate, it will increase, and he will be seriously ill. Some illness are that it cannot be recovered. No treatment can be provided to it. वो बोल दिए whatever I have told you to cut short the food and the sugar and to give him exercise. If you are not going to act upon it, if you are not going to do it, then he will be seriously ill.
यू मस्ट हार्डन योर हार्ट। बोलते कि आपको प्यार है, हम लोग को कुत्ता कुत्ता लग रहा है, लेकिन उनके बच्चे के समान था मिसेस पैम्फ्री के लिए। तो बोले तुम आपको मन से थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा। कुत्ता लाख कुछ मांगे, आप मत दीजिए उसको, मन को कड़ा के दीजिए, एंड कीप हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट। और स्ट्रिक्ट डाइट पे दीजिए, सुबह 2 रोटी देना है तो देना, उसके बाद 1 बजे दे देना। ये आए भी मांगे भी तंग भी करे तो इसके बीच में इसको कुछ नहीं देना, बस ये सिंपल चीज है। देन द डॉग विल बी कंप्लीटली ऑल राइट। मिसेस फर्म पंफरे रंग हर हैंड, ऐसे ऐसे वो करने लगे, मतलब आई कॉन्ट डू इट, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड अटैचमेंट एफिनिटी विद द डॉग, तो आई कॉन्ट डू इट, ओ आई विल। और वो ऊपर ऊपर बोल दिया कि ओके डॉक्टर साहब, आई विल ट्राई, मिस्टर हैरियर, I'm sure you are right. And she told the doctor that whatever you told, I think that it is right. Hmm? But it is so difficult, so very difficult. बोलती है हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये आता है हमारे पास मांगता है और निढाल पड़ा रहता है, तो हमको लगता है इसको खाने की जरूरत है, एनर्जी कम है, तो हम इसको दे देते हैं। She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. And after that, both of them going into two directions. Doctor on his way, wherever he was going, either to his home or to the patient or to the market, and Mrs. Pumphrey started going home. This was the end of the talk, and I think you have understood that both of them on the road, and the dog was also, Tricky was also with the mistress, and doctor became very much sad and worried about the poor physical condition of the dog. Poor condition means, let's say, he has accumulated lots of fat because he has eaten a good amount of, let's say, I mean, rich food. And doctor told that I have already advised you to what to do, to advise you to cut short his food and to to give him exercise, and you are not doing, and if you are not going to do it, then what will happen? He will be seriously ill, and he will reach at a point where no treatment is possible. So आप समझिए क्या करना। And he, let's say, she told, okay, I will try my best, but it is very difficult for me. और इसके बाद दोनों अपना अपना चले गए। I watched their progress with growing concern. डॉक्टर बोलते हैं फिर हम कुत्ते का जो प्रोग्रेस था ना, प्रोग्रेस अच्छा हो या बुरा हो, बोलते हैं हम उसको ना चिंतित होकर देखने लगे, ऑब्जर्व करने लगे, डेली लेवल, डेली बेसिस पे। ट्रिकी वॉज ट्रॉटरिंग अलोंग, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, टॉटर कर रहा था, ठीक है। इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, उसको कोट दिया गया था। ट्वीट कोट, एक कोट का कपड़ा आता है, और बोले उस कोट को पहने हुआ था ट्रिकी, और धीरे धीरे चल रहा था कुत्ता को ना। एक मिनट, नॉर्मल वॉकिंग है नहीं, कुत्ता एकदम वाइब्रेंट होता है, नॉर्मल कुत्ता भी जो हम लोग देखते हैं रोड पर, घर के अगल बगल इधर। इन इज लिटिल ट्वीट कोट पहना हुआ था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। और क्या बता रहे हैं ऑथर साहब कि उस कुत्ते के लिए, ट्रिकी के लिए, पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ था। वार्डरोब, अलमीरा जो है ना, कपड़ों से भरा हुआ था, एक कोट नहीं, डिफरेंट साइड्स ऑफ टाइप्स ऑफ कोट से उस कुत्ते के लिए। फॉर द कोल्ड वेदर, एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज। कहीं उसको पहनने का मन है, घूमने का मन है, बारिश हो रही है, तो उसके लिए भी ये रेन कोट था। और कोल्ड वेदर के लिए एक दो नहीं, हम लोग के पास तो है ही नहीं, और इसके पास तरह तरह के कोट्स था। ये स्ट्रगल डाउन, उसको चलने में भी संघर्ष करना पड़ रहा, मुश्किल से चल पा रहा। ये स्ट्रगल डाउन, ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और रह के ना वो झुक जाता था। 2 4 5 कदम चला, फिर वो झुक गया, उससे चला ही नहीं पा रहा, इतना ज्यादा बॉडी में फैट जमा। और बॉडी में फैट जमा तो लीवर फंक्शन करेगा नहीं नॉर्मल, किडनी फंक्शन करेगा नहीं नॉर्मल, देन वी विल बी फीलिंग इल एंड सिक। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस फम्फरी। और डॉक्टर साहब समझ रहे हैं कि अब बहुत जल्दी हमको फोन आएगा। कहाँ से आएगा? इनके मालकिन से, कि कुत्ता तो अब हिलडुल भी नहीं रहा, बहुत नाजुक स्थिति में है, आप कुछ कीजिए, अभी तक मालकिन को समझ में नहीं आ रहा है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम, और जैसा ये सोच रहे थे ना, वैसे ही कॉल भी आ गया मैम के यहाँ से डॉक्टर साहब को। विद इन ए फ्यू डे, ओनली आफ्टर फ्यू डे, द डॉक्टर साहब, मिस्टर हेरियर साहब, रिसीव द फोन फ्रॉम द मिसेस पम्फ्री, फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री वाज डिस्ट्रॉट, मींस ही वाज वेरी मच सैड, ही वाज वेरी मच सीरियस। ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग, अब तो वो खाने के लायक नहीं रहा, उसको खाना दिया जा रहा है, ला ला के दिया जा रहा है डिफरेंट बॉल्स में, डिफरेंट का, लेकिन वो खाने के लायक नहीं, अंदर में तो पूरा फैट्स भर गया, तो डाइजेशन है नहीं।
तो वो बोल रही है कि देखिए ना, अब तो इसका ये हाल हो गया है, ये कुछ खा भी नहीं रहा। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना था, वट एवर मे बी, either the malt or the cod liver or let's say milk or biscuit or chocolate, he is not I mean accepting it, rather refusing it. And besides, इसको छोड़ के क्या प्रॉब्लम आया? He had bouts of vomiting all the time. Now he is vomiting because the illness has aggravated. He became very seriously ill. So all the time he is vomiting. He spent all his time lying on a rug. उसके लिए एक से एक कारपेट आया हुआ था, बस चुपचाप वो पड़ा रहता था कारपेट पे, और कसखस के हाँफ रहा। उसको सांस लेने में नॉर्मल सांस ले ही नहीं पा रहा, पैंट कर रहा। पैंट करना मतलब होता है Hafna didn't want to go for walks, and I'm forcing him. I'm telling that I'm forcing him to go outside for the walk, but he is not interested and not going. Didn't want to do anything. बस कुछ नहीं करता है, न हिलता है, न डुलता है, न घूमता है, न खाता है, न पीता है, neither he is eating or sleeping only dull, like a dull, let's say, I have been animal. He is, let's say, lying on the rug or on the floor or on his bed, whatever may be. Hmm? This information was given on phone by Mrs. Pumphrey to Dr. Harriet after some time. I had made my plans in advance. डॉक्टर साहब को तो पहले से पता था कि ये होना था, इसलिए उन्होंने प्लान बना के रखा था. The only way was to get Ricky out of the house for a period. And he has planned. जो डॉक्टर है वो अपना स्ट्रेटजी बना लेते हैं ब्रुकलिन कि क्या क्या होना. वो समझ गए इस कुत्ते को इस घर से निकालना, हॉस्पिटल में लाना. ठीक है. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. Then Dr. Harriet told Mrs. Pumphrey on the phone that only one option is there, that he should be hospitalized in my hospital, and not for a very long time, but for maximum, let's say, period of 15 days, 20 days. That is one fortnight. One fortnight is, let's say, 15 days. The poor lady almost soon, उनको जब पता चला ना कि कुत्ता को घर से अलग रखना है, हॉस्पिटल में रखना है, एक तरह से वो बेहोश हो गई ऑलमोस्ट, क्योंकि वो कुत्ता के बिना नहीं रह सकती, वो ट्रिकी के बिना रह ही नहीं सकती. कुत्ते को कुत्ता समझे नहीं, उनका बच्चों के जैसा था. She was sure she would pine and dine if he did not see her every day. और मिसेस पंफ्री को लग रहा है कि अगर ये कुत्ता हमको नहीं देखेगा पर डे, तो एक तरह से वो डेथ हो जाएगा. उसको दोनों तरफ से अटैचमेंट था. द डॉग ऑल्सो वॉज इन लव with that very mistress, and the mistress was also. So she thought that it's good that he should be hospitalized, but she thought that the dog is going to have a big shock if I will be unavailable, because the doctor has told to, let's say, what to do to hospitalize him, isn't it? तो आवाज जा रही है? सब ठीक है? बोलो रोहित. Yes, sir. हम्म. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है स्टोरी? सिंपल स्टोरी है, कोई खास नहीं है. एक कुत्ते की कहानी है. जरूरत से ज्यादा लाड प्यार और खाना कुछ भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए शुरू से कहा गया एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. जैसे होल नाइट पढ़ ही रहा है बिना ब्रेक के, वो भी अच्छी बात नहीं, उसमें ब्रेक चाहिए. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, शी वाज श्योर ही वुड पाइन, वो उसको काफी तकलीफ होगा, रोएगा, गाएगा. एंड इफ यू डिड नॉट सी हर एवरी डे ही विल डाई. और उनको लग गया कि अगर रोज हमको नहीं देखेगा ना, तो कुत्ता आज न कल डेथ हो जाएगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन. वो बोल दिए दैट ओनली वन ऑप्शन इज देयर. कौन बोल दिए? डॉक्टर हेरियार्ड. दैट नो, the treatment cannot be done at your home. Rather, he should be coming in my hospital. And only one option is there. And he became a stick that sent the dog. Tiki was very ill. And this was the only way to save him. And he told clearly that he is very much serious. Maybe he will be dying. And only one option is there to save him, to treat him, to recover him. Let he be sent to me. In fact, I thought it best to take him without delay. और आज का आज, ये मत बोलिएगा 2 दिन बाद और 10 दिन बाद और 4 दिन नहीं, आज का विदाउट एनी डिले. एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग. और मिसेस पम्फ्री ना जैसे बच्चे को ना जुदा करते वक्त रोना बिलापना और मातम मनाना, वैसा वेल करने लगी, चित्कार रोने लगी. ठीक है. आई मार्च आउट टू बी कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. ये उनके घर पे गए डॉक्टर साहब अपना गाड़ी लेके. और कार में कुत्ते को एक ब्लैंकेट में लपेट के और कार में उसको स्टफ किए, उसको बैठाए, लिटाए, रखे. द एंटायर स्टफ वाज राउस. इनके यहाँ तो रिच महिला थी, रिच फैमिली से थी, कई ठो स्टाफ थे. स्टाफ मीन्स योर
नौकर चाकर इन हिंदी, सर्वेंट्स एंड असिस्टेंट, सारे के सारे को काम में लगा दिया गया है। ट्रिकी जा रहा है, कोई खाना ला के लाएगा, कोई इसका बर्तन लाएगा, कोई डिफरेंट कोट्स लेके आएगा, कपड़ा लेके आएगा। एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। दिन में ये दूसरे बेड पे सोता था। हिज नाइट बेड पे ये अलग कुशन और कारपेट पे सोता था। फेवरेट कुशंस, एक से एक गद्देदार इसका बिछावन था, बेड था। इसका ट्वाइस था, इसका रबर रिंग था। ब्रेकफास्ट का बाउल से अलग था, सुबह दूसरे बाउल में खाना खाएगा, नाश्ता। लंच बाउल अलग था, सफर का बाउल, सारे नौकर चाकर को लगा दिया। दैट इज गोइंग फॉर 15 days, put everything into the car, like the different utensils, different beds, and different, let's say, I am in uniforms or dress. Realizing that my car would never hold all the step, I started to drive away. वो समझ गए इतना सारा सामान रखा जा रहा है हमारे गाड़ी में, इतनी छोटी गाड़ी है, इसमें तो अटेगा ही नहीं। उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, and he started moving. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ा ना, अब कोई ऑप्शन नहीं था, बहुत सारा कोट उसके लिए रखे हुए थे। जैसे तैसे उस सारे कोट को, कुत्ते के कोट को, ट्रिकी के कोट को, वो उसकी खिड़की से, कार की खिड़की से उसमें घुसा दिए। एनी हाउ, आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर। और जब कॉर्नर से मुड़ रहे हैं, गाड़ी जहां से मुड़ रहा है ना, वो देख रहे हैं अपने बैक मिरर में, देख रहे हैं गाड़ी में, the corner of the drive, everybody was in tears. Not only ma'am was weeping, entire staffs, either the maid servants or the servant or the other staffs, everybody was weeping in the sense that he has been away. The main family member, that is the tricky, was going away from the house. So everyone was sad and weeping. Clear everything? Yes, sir. समझ में आया? रोहित है? Yes, sir. आयुष? ठीक है। Yes, sir. आराध्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आराध्या बेटा? Yes, भुवनेश्वरी? sir. सब ठीक है? सुन रहे हो, समझ रहे हो? भुवनेश्वरी एंड विधि, बोलते नहीं हो कुछ? Yes, sir. ठीक ठीक है, ठीक है। Now one more paragraph, because time is up. In 1 minute it is going to, let's say, cut down. No problem. We will meet again on Monday in class and here and there, online and offline. Out on the road, जब ये रोड पर आ गया, मेन रोड पर, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the sea. वो ढंग से सांस भी नहीं ले रहा। ये तो अभी नजारा देख रहे थे घर का ना और मैम का ना। जब मुड़ने के बाद जब गाड़ी को आगे स्ट्रेट ड्राइव किए ना, तो कुत्ते की तरफ इनका ध्यान गया। मुड़ के देख रहा है, ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग, एंड एट द सेम टाइम he had a glance at the dog, that he was unable to gasp. He was gasping, मुश्किल से सांस लिए जा रहा है, नॉर्मल था ही नहीं। ऑन द सीट बाय माय साइड, वो बगल में ही था बैठा हुआ, उनको लिटाए हुए थे कुत्ता को। आई पेटलेड द हेड, उसको प्रेम से पुचकारते, जैसे हम लोग क्लास में पुचकारते हैं ना, वो पुचकारते हैं। और कहीं ना कहीं पर एक तरह से एक कुत्ते को बोल रहा है दैट नो प्रॉब्लम।